Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, 13th chapter in your chemistry, that is organic compounds, some basic principle and techniques. So beta, in this chapter first of all we will discuss the what are organic compounds, what are functional group, इसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे. फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड देयर नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नोमेनक्लेचर. तो इसमें हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेसिकली उसमें क्या क्या इफेक्ट बनते हैं, न्यूक्लियोफाइल के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं, resonance, electronic effect and inductive effect. What are various type of the effect in an organic compounds. Then we will discuss the types of the reactions: electrophilic reactions, nucleophilic substitution reaction, electrophilic addition reaction, nucleophilic addition reactions. Understand? तो first of all हम करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बेटा organic compounds are those which are formed by carbon and their derivatives like oxygen and hydrogen, that are known as organic compounds. For example, कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, that is कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, या एल्कोहल, ठीक है, aldehyde, ketones, all are organic compounds. नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इसमें द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो बेटा इसमें हम बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे. तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल, ओपन चेन है या क्लोज चेन है, दैट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एसाइक्लिक organic compound. Acyclic organic compound and second है cyclic organic compound. Cyclic organic compound. Now cyclic organic compound again categorized into two categories, that is homocyclic and heterocyclic compound. Homocyclic organic compound and heterocyclic organic compound. Understand? जिस होमो मीन सेम साइकिल, हेटेरो मीन जिसमें दो अलग अलग साइकिल एक साथ अटैच होती हैं, दैट आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट है बेटा अल्साइक्लिक एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. नो होमोलाइटिक फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए, ठीक है, एरोमेटिक एंड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. असाइक्लिक एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. And aromatic compound are again categorized into two categories, that is benzenoid and non-benzenoid. So that are the very classification of organic compound. Acyclic means simple cycle. Simple cycle, for example, alcohol, methyl alcohol CH3OH, ethyl alcohol CH3COOH. So that are acyclic organic compound. Cyclic organic compound जिसमें साइकिल की फॉर्मेशन होती है, that are converted to homocyclic and heterocyclic organic compound. Homocyclic again categorized into alcyclic and
एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होती है, नॉन बेंजोनाइड देयर इज नो बेंजीन रिंग। अंडरस्टैंड? सो एरोमेटिक बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कंटेन 4n + 2 pi हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हर साइक्लिंग में 4n रूल को फॉलो करते हैं। तो 4n, n इज द नंबर ऑफ द रिंग्स, ठीक है। तो जिसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लो सपोज देयर इज ए 1 रिंग, देन देयर इज ए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफ देयर इज ए 2 रिंग, देन देयर इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन। And there is, if there is a no ring, then there is a 2 pi bond. So if that condition fulfilled, then that compound is called aromatic organic compounds. So that are the classification of organic compounds. Understand? Now on the basis of this classification, we will discuss all the type of organic compounds. Now let us discuss the some of the functional group in an organic chemistry. What are functional group? So beta, what are functional group? The functional group which gives the characteristic property to that organic compound, that are called functional group. ठीक है? So the main characteristic property of any organic compound is due to the presence of the functional group. So there are many type of functional. If there is a carbon-carbon single bond, then it is called alkene. If carbon-carbon double bond, then it is called alkene. ये ane. And if there is a triple bond, then it is called ine. Understand? So that are the various. That are the few functional groups. If halogen has a function group, halogens, इसको X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अंडरस्टैंड? तो उनको लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है एल्कोहल एज ए फंक्शन ग्रुप, एल्कोहल। तो एल्कोहल बेटा होता है OH और उसको एब्रिविएशन दिया गया OLC। नेक्स्ट है अल्डिहाइड एज ए फंक्शन ग्रुप। इफ any carbon compound contain that function group, terminal position पर C double bond OH है, then that is called aldehyde. And if there is a carbon chain on both the side of the carbonyl group, then that is called ketone group. और उसको ONe से राइट किया जाता है और उससे AL से, ठीक है। So that are the aldehyde and ketone functional group. Next है कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, उसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिल, ठीक है। ओइक एसिड से इसको मेल किया है, ओइक एसिड। नेक्स्ट है एसिड अमाइड, इसको बोलते हैं बेटा एसिड अमाइड। एंड that is called ester. Ester as a functional group. And that is called amine. Amine as a functional group. Next है बेटा homologous series। बेटा homologous series are those in which functional group remains same and previous compound differ from the next compound by CH2 unit. That is called a homologous series. For example, if we will discuss the homologous series of alkene, इसकी हम homologous series बनाएंगे तो first member CH4, next member C2H6, तो plus CH2 you had
plus CH2 group, C3H8 plus C4H10, so अंडरस्टैंड। तो ये होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन, C2H2, C3H6, C4H8, so तो प्लस CH2 ग्रुप आप ऐड करेंगे, प्लस CH2 ग्रुप ऐड करेंगे। नो होमोलॉगस अल्काइन के लिए भी आप कर सकते हैं। अल्काइन C2H2, C3H4, C4H6, so that are the homologous series for alkyne, understand? So इसका नेम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अंडरस्टैंड। और इसका नेम आपका आ गया इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। सो ये होती है बेटा होमोलॉगस सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। अगर हम इसकी बात करें CH3OH, तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा? इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। देन इसका नेक्स्ट होमोलॉग CH2OH, ठीक है, इथेनॉल। सो एंड सो ऑन, CH2 यूनिट आप ऐड करते जाएंगे, द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम। नेक्स्ट है बेटा हाउ वी राइट द नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हाउ यू राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले IUPAC क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके बेस पर कुछ ही रूल्स हैं दैट डिफाइन द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले बेटा आता है प्रीफिक्स, फिर आती है वर्ड रूट, देन सुफिक्स। सुफिक्स दो तरह का होता है, कब तक? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सुफिक्स। अगर मान लो पहले आएगा बेटा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स एंड देन सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स बेसिकली होते हैं एल्कीन, एल्कीन या आयन, अंडरस्टैंड। और सेकेंडरी ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड प्रीफिक्स में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, पाइरो या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एक्सेट्रा, इसका यूज होता है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। एंड वर्ल्ड ग्रुप बेटा कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक मैं आपको बताता हूँ। देयर इज कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड मेथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 prop, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप, कार्बन 8 ऑक्ट, C9, कार्बन 9 नॉन, NON, C10 इसको बोलते हैं डेक, C11 अनडेक, C12 डोडेक। सो अंडरस्टैंड। सो ये है नंबर ऑफ द कार्बन एटम। अब हम नोमेनक्लेचर फॉर एग्जांपल किसी भी और कंपाउंड में सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ CH3 CH3 नेम। तो दो कार्बन एटम में वर्ड रूट क्या है इसमें? F प्लस सुफिक्स, देयर इज नो प्रीफिक्स इन दिस कंपाउंड। सुफिक्स क्या है इसमें? सिंगल ए, देन वी कंबाइन टुगेदर, देन इट बिकम इथेन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के दो तरीके होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, अंडरस्टैंड। ये मैं कंडेंस फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें लाइन रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो इसी तरह से CH3 CH2 CH2 CH3, तो हाउ मेनी कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम, देन यू कैन राइट लाइक दिस
that is called bond line representation of an organic compound. If there is a functional group attached to that organic compound, then simply add the functional group. ठीक है? For example, if I write CH3 CH2 OH, then OH, that is the bond line representation of an organic compound. ठीक है? तो बेटा व्हेन यू डिसाइड द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आप कैसे करेंगे? अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है एल कार्बोक्स में, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर जाएगा, उसका नंबर फर्स्ट आएगा। देन सल्फर ग्रुप, सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप SO3H सल्फाइड ग्रुप, देन एस्टर ग्रुप COOR, अंडरस्टैंड? देन उसके बाद आएगा बेटा acyl halide, then acyl amide group, then CN group, alcohol group OH group, इससे पहले aldehyde group, फिर ketone, and फिर से बेटा उसमें OH NH2 के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो दैट आर द प्रायोरिटी ऑर्डर, दैट आर द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शन ग्रुप. इफ देयर इज ए मोर देन वन फंक्शन ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन प्रायोरिटी ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे इस तरह. सबसे पहले कार्बोक्सिल, सल्फाइड, एस्टर, असाइल हाइड्राइड, असाइल अमाइड, then cyano group, then aldehyde, then ketone, then OH alcohol group, then amino group, amine group, then double bond, then triple bond. Suppose आपके सामने ये compound है, what is the name of this compound? No, in this compound there is double bond and triple bond together. ठीक है? So priority order हम double bond को first देंगे, second, third और fourth. ठीक है? तो उसका name क्या आएगा बेटा? तो 4 है voltbute प्लस 1E प्लस 3I, तो उसका नेम बन गया बेटा ब्यूट 1E. अब जब आप बॉबल्स देखेंगे बेटा E, तो E यहां से साइलेंट हो जाएगा, देन 3I. दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप वेल. ठीक है? नाउ if there is a cyclic compound like this, तो बेटा सबसे पहले इसमें prefix आएगा cyclo plus hex plus ene, then it will become cyclohexane. Understand? So there are various kind of example in your organic chemistry, so try these examples. फॉर एग्जाम्पल मैं एक तो कंपाउंड आपको लिख के दे देता हूँ, ये देखिए बेटा. नाउ व्हाट इज द ऑर्गेनिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहाँ से आ रहे हैं. अगर मैं इस साइड से नंबर 1 देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द, आफ्टर दैट see where the lowest set of the locant जो है वो आपके साइड चाहिए वो कहाँ पर ऑक्युपाई करते हैं. अगर हम मैं नंबर एक राइट हैंड साइड से लेता हूँ तो लोकेंट पड़ रहे 3 और 4 पोजीशन पर, तो इनका प्लस करने पर आ रहा है 7. इफ आई नंबर दिस कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो आ रहे 5 प्लस 6 पोजीशन पर, देन 11. तो बेटा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बोलता है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट दी जो साइड में ग्रुप हैं आपके वो लोएस्ट कार्बन पोजीशन पर पड़ने चाहिए. दैट रूल इज कॉल्ड लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. तो ये वाली नंबरिंग इसकी प्रेफर होगी देन दिस. ठीक है? तो उसका नेम आएगा बेटा 3-methyl. अब अल्फाबेट ऑर्डर में आपने चलना है. ठीक है? 5-methyl 3-methyl
1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन इसका करेक्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो दैट रूल इज नोन एज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। सो होमवर्क क्या आपके लिए, राइट ऑल द नोमेनक्लेचर of organic compound that are discussed in the NCERT। जो भी NCERT बुक में डिस्कशन की गई उनको आप सभी को एक साथ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट है बेटा नोमेनक्लेचर के बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। So beta carbon and its derivative mainly form covalent bond. So covalent bond is formed by the mutual sharing of the electron from the both side of the element. For example, CH4, CH3, CH3, all are covalent bond. CH3, OH. तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कुछ एक उसमें इफेक्ट जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे बेटा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट ओनली कम्स इनटू कंसीडरेशन व्हेन फ्रॉम द आउटसाइड न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द कंपाउंड, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट बट दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज जनरेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी हेटेरो एटम ऑन दैट कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल अगर बेटा किसी भी कार्बन कंपाउंड के ऊपर मान लो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो यहां से इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये जो हेटेरो एटम X और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट आर मोर लाइज टुवर्ड द हैलोजन एटम, दैट इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। बेटा एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या मीनिंग होता है इसका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इसका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3, CH2, Cl की बात करूं तो यहां पर माइनस आई इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है इसका। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है बेटा ये। बट इस अल्काइल ग्रुप का क्या है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसका क्या है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, इट अराइज व्हेन in from the outside nucleophile and electrophile attack on the organic compounds. Understand? And inductive effect are permanent effect and it is already present in the organic compounds, and this effect is of two type, minus I and plus I inductive effect. Minus I mean electronic withdrawing group. All the electronic withdrawing group comes into consideration of minus I inductive effect. For example, chlorine, fluorine, bromine, iodine. Plus I inductive effect shown by those organic compound where, for example, methyl, ethyl, propyl group all show plus I inductive effect. Understand? Next हम पढ़ेंगे बेटा resonating effect क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट इसको बोलते हैं।
सो बेटा रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड बाय इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टू पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर बेटा दो पाई बॉन्ड है बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम। सो बेटा ये एक तरह से क्या होती है, एक पोलैरिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल इफ अल्टरनेट पोजीशन पर मान लो सपोज डबल बॉन्ड है तो पोलैरिटी जनरेट होगी इस साइड से, सो दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट। अंडरस्टैंड, ये भी दो तरह का होता है, प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड माइनस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन तो बेटा क्लोरीन अगर वैसे तो ये माइनस आई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती, बट व्हेन इट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनशेप्ड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट शो प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो ये अपनी आर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को डोनेट कर सकते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट। बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ NO2 नाइट्रो ग्रुप की मैं एग्जांपल लूं इस तरह से, तो नाइट्रो ग्रुप क्या शो करता है बेटा, माइनस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक माइनस आर भी शो करता है एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। सो दैट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ group on an in any organic compounds. I hope you understand each and every concept well. Understand? So आपके लिए होमवर्क है इसकी रेजोनेटिंग और रेजोनेशन स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है, एंड ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी, उनकी सेम एनर्जी होती है, एंड देयर इज ए मोर स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मोर इज द रेजोनेंस इन ए मॉलिक्यूल, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटा आता है व्हाट आर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन आल्सो कॉल्ड नेथन एंड बेकर इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, या सिग्मा पाई कंजुगेशन। ठीक है, इसके दो तीन नाम है बेटा हाइपर कंजुगेशन के। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, it is also called Nathan and Baker effect। या फिर इसका अनदर नेम है सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन, तो बेटा इसकी एक सिंपल कंडीशन है, अगर डबल बॉन्ड की एडजेसेंट पोजीशन पर इसको सिग्मा कार्बन एटम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर का डबल बॉन्ड की एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन दैट कंपाउंड शो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज CH डबल बॉन्ड Cl H CH2 नेगेटिव। सो बेटा अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज नो बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। अंडरस्टैंड? तो ये बिकॉज ऑल द थ्री हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, सो ये तीनों पोजीशन पर ये एक तरह से मूव करेंगे, CH फिर ये हो जाएगा, ठीक है, H और CH CH2 and so on. So beta, if we want to determine the stability of any organic compound, then hyperconjugative structure या compound is more stable than the resonance, which is more stable than the inductive and which is also more stable than the other minor effects. तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने स्टेबिलिटी देखनी है तो हाइपर कंजुगेशन देखनी है, फिर रेजोनेंस उसमें देखनी है और फिर उसमें इंडक्टिव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपने शो देखना है। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम करेंगे फिर इनके नेक्स्ट हम करेंगे बेटा बॉन्ड क्लीवेज।
बॉन्ड क्लीवेज होती है बेटा होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज होती है बेटा, अगर सपोज करो ये बॉन्ड है, अब होमोलाइटिक होगी मींस आधा बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक होगा, आधा बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक होगा, R प्लस X, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन। सो होमोलाइटिक क्लीवेज ऑलवेज गिव्स फ्री रेडिकल, तो यहां पर बनते हैं बेटा फ्री रेडिकल। एंड होमोलाइटिक क्लीवेज बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में बेटा फॉर एग्जांपल अगर नोन एज CRX, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इस तरफ को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इससे बेटा दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट एंड दूसरा होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट। तो अब क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल आर दोस दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके आता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, दैट ब्रिंग्स a electron pair. For example, OH negative, NS3 जिसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर जरूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल आर दोज व्हिच ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, NS3, ठीक है, CN नेगेटिव, ठीक है, all are न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोफाइल आर दोज, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज व्हिच एक्सेप्ट, ठीक है, जो क्या करेगा बेटा, व्हिच टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को टेक अवे अपने साथ ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बेसिकली क्या करता है, लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैच होगा एंड इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैच हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर मैं सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर जनरेट होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सो दैट आर द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब बेटा जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन जनरेट होते हैं, इससे फ्री रेडिकल जनरेट होगी। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भूल जाओ, इसमें जरूरी नहीं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की पावर रखेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल होगा जो दैट ब्रिंग्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके मींस उसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एक होता है कार्बोकैटायन और एक होता है कार्बोनाइन। कार्बन, तो बेटा इसमें याद रखना है आपने जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, which is more stable than simple carbon, understand, and which is also more stable than simple methyl cation। तो होमवर्क है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने लिख के लेके आना है। सो दैट आर द फ्यू basically the basic idea of this chapter, that is organic compounds and basic
principles and the technique. Next chapter we will discuss the hydrocarbons. तो उसमें मैं types of the reaction उसमें ही बता दूंगा आपको. तो सेकेंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. सो एनसीईआरटी बुक को आपने थॉरली पढ़ना है. कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सबने रीड करना है. IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. देन if you practice each and every concept very well, then you are very comfortable in the organic chemistry. Thank you, students.